So, hello, my dear students. Today, I am going to now discuss very interesting and important topic of electricity, that is potential and potential difference, circuit diagram, and last में हम लोग देखेंगे ohms law, right? So today just this topic is fully based on the previous video, so please watch the previous video so that you can earn the basic information related to this chapter. Clear? So our topic is electric potential and potential difference. Electric potential, yes, electric potential and potential difference. Electric potential and potential difference. Visible? Yes. So what is electric potential? First of all, what is electric potential? Potential, that means voltage. How much voltage is supplying in an electric circuit is known as electric potential. Or the electric potential is the voltage supply in the two terminals of the circuit or potential. दो टर्मिनल्स के बीच में, टर्मिनल बी और टर्मिनल ए के बीच में कितना वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, and that voltage is known as electric potential. And the potential difference is the difference of voltage between 2 points. If here is 40 volt and here is 20 volt, then potential difference is B minus A, that is equal to 40 minus 20, that is 20 volt. This is potential डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स. क्लियर है? तो इस चीज को अब हम लोग लिखेंगे द इलेक्ट्रिक, ओके, इस चीज को हम लोग लिखेंगे अपनी भाषा में और उसको समझेंगे. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, the electric potential difference को PD लिख सकते हैं ना, PD between 2 points between 2 points in an electric circuit, carrying some current as the work done to move a unit charge 1Q, right now, 1Q unit charge from one point to
another. That means potential difference, the potential difference or the potential difference between 2 points, between 2 points, between 2 points is equal to the work done, per unit charge, that is potential difference is equal to work by charge, that is potential difference is V is equal to W by Q. V is equal to W by Q. V is the potential difference, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो किसी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज करने में जितना, यूनिट चार्ज को ले जाने में, यूनिट चार्ज को कैरी करने में जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. राइट? So this is known as potential difference. So the SI unit of potential difference V is क्या है? वर्क का SI यूनिट क्या होता है? जूल बाय चार्ज का कूलम और जूल पर कूलम. And this is known as volt. इसको हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट. जूल पर कूलम, और इसका नाम दे दिया गया वोल्ट. क्लियर? नोट करेंगे, करिए नोट करिए इस चीज को. ओके. अब हम लोग डिफाइन करेंगे इसी फॉर्मूला के हेल्प से. एक अगला टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज 1 वोल्ट. व्हाट इज 1 वोल्ट? तो जो भी इस तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 वोल्ट, ये सारे के सारे टर्म्स फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. इफ यू नो फॉर्मूला देन इट इज वेरी इजी टू डिफाइन इट. So our topic is what is 1 volt. 1 volt क्या है? अब देखिए 1 यहाँ पे लाने के लिए 1 करना होगा, यहाँ 1 करना होगा, यहाँ तब ना 1 by 1 1 आएगा. क्लियर है? तो 1 volt the work done to carrying a unit charge that is 1 coulomb. Unit charge from point 1 to another, from point 1 to another is called, from point 1 to another is called 1 volt. अब देखेंगे 1 volt is equal to, तो 1 volt यूनिट चार्ज को कैरी करने में कितना एनर्जी लगा, तो 1 जूल बाय 1 कूलम. सो दिस इज नोन एज 1 volt. क्लियर? दिस इज नोन एज 1 volt. क्लियर है? नोट करेंगे इस चीज को.
इसी को नोट करेंगे। अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन है। सो वी हैव अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है वर्क डन कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या देख रहे हैं, तो गिवन में Q इक्वल टू दिया हुआ है 2 कूलम, और क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू दिया हुआ है 12 वोल्ट। हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, W नहीं दिया हुआ है, जो निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तो सिंस V इक्वल टू W बाई Q, अब यहां से हम लोग V का वैल्यू जानते हैं, 12 इज इक्वल टू W बाई कितना 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24, और W क्या है, वर्क डन, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। सो 24 जूल। क्लियर, ओके, नोट करें, नोट कर लिए। सो ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम। What is circuit diagram and what it consists? So circuit diagram is nothing but a closed path of conductor in which various electrical appliances like bulb, battery, cell, switch, etc. are connected. Right? So the electric diagram that shows circuit diagram that shows the movement of electrons connecting with different electric appliances like batteries, cells, key, electric bulb, resistance, ammeter, voltmeter, etc. is called a circuit diagram। ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस कनेक्ट होते हैं, तो इसी डायग्राम को हम लोग बोल रहे हैं सर्किट डायग्राम। से यहाँ पे मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। दिस इज नोन एज की, यहां पे एक मैं लगा दिया एमीटर, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। यहां पे मैं एक लगा दिया बल्ब, यहां पे मैं एक लगा दिया बल्ब। अच्छा, बल्ब कुछ अच्छा दिखना चाहिए ना, अच्छा चलो ये बल्ब है, ओके। यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस ऐसा, यहाँ पे लगा दिया बैटरी, क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया बैटरी, हो गया की, एमीटर, ये हो गया बल्ब, बल्ब ग्लो किया, क्लियर है। सो दिस इज रेजिस्टेंस, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, क्लियर। सो एक चीज मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था, वहां पे नहीं किया। पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, सीधी सी बात है कि जब कोई लिक्विड है तो लिक्विड इसमें भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है। तो ये जब लिक्विड भरा हुआ है तो दूसरा हम कंटेनर में लाने के लिए उसमें क्या करना होगा, एक डिफरेंस रखना होगा, एक डिफरेंस गैप रखना होगा। मतलब कि हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में बहती है, रिवर कैसे बहती है, तो हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में। उसी तरह से पोटेंशियल क्या होता है,
हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में मूव करता है। क्लियर है? हायर ऑर्डर से, तो वो बात मैं वहां पे करना भूल गया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्किट डायग्राम connecting different appliances like what we have written here. Next, our important topic from here, just you note down this thing. नोट कर लिए? नोट कर लिए? ओके, तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। So our next topic that is very important topic is Ohm's law. Ohm's law. So make your heading Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law. So Ohm's law states that when a potential difference is applied in a metallic conductor, the current will flow directly proportional to it. Clear है? Keeping temperature and pressure of that wire is constant. जब किसी वायर में, जब किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Clear? So what do you mean by directly proportional? So directly proportional, that means when we increase one thing, then another thing will automatically increase. When we decrease one thing, then another thing will automatically decrease. This is the meaning of directly proportional. तो इसका स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं। स्टेटमेंट इसका है, so this is the statement of Ohm's law. What we have called this thing, we have written here, it states that when a potential difference V is applied across a metallic conductor in a circuit, then the current flowing in it is directly proportional to it. That means temperature and constant remains constant. Mathematically, V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. So this is the Ohm's law. And from here, if we remove proportionality sign, then it will become V is equal to IR. हम लोग जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साइन देते हैं, लेकिन एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं R, where R is a proportionality constant called resistance. Called resistance. Clear? Called resistance. Its symbol is like this. यह है resistance. Clear? And the SI unit of resistance is ohm. This is why, because this is derived by ohm, इसलिए इसका SI यूनिट क्या है? ओम है। ओम, OHM, और इसका सिंबल है दिस। क्लियर है? ऐसा ओम। और यहां से अगर हम R का वैल्यू पूछे कि R का वैल्यू क्या है, तो V/I है। दैट मीन्स, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि V दैट मीन्स वोल्ट पर एम्पियर। दिस इज ऑल्सो द SI यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर है? सो दिस इज द ओम्स लॉ। अब
हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, देन विच टाइप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड, देन वी विल शो हियर। सो नोट करिए इस चीज को, नोट कर लिए। ओके, ओके ओके, अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है, तो जरा इसके देखें। जब हम लोग ग्राफ वोल्टेज और करंट के बीच में खींचते हैं तो पाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जस्ट आई एम राइटिंग हियर। So according to Ohm's law, when the graph is drawn for voltage versus current, it shows a straight line in increasing order, which shows the ratio of voltage remains same. तो जब हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पाते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन है। हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, voltage versus current, this is voltage, this is current। तो हम लोग को कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, हर एक वैल्यू पे एक अपना वैल्यू है, हर एक पॉइंट पे एक अपना वैल्यू है। दिस शोज स्ट्रेट लाइन इज V is equal to IR, दिस इज V is equal to IR। क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, अगला मेरा जो पॉइंट है दैट इज व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, यानी 1 ओम। 1 ओम हम लोग किसको कहते हैं? क्लियर है? 1 ओम किसको कहते हैं? तो ओम्स लॉ यहीं पे खत्म होता है। ओम्स लॉ का यहीं तक था सिग्निफिकेंस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ग्राफ तक। क्लियर? अगला मेरा टॉपिक है व्हाट इज ओम्स 1 ओम। सो 1 ओम, फॉर 1 ओम दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आर का वैल्यू आपको बताना है V/I। तो मैं बताया था कि 1 ओम, 1 वोल्टेज, 1 कूलम, ये सब फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे? फॉर्मूला अगर पता है तो 1 ओम दैट मीन्स अगर आर का वैल्यू 1 ओम लाना है, मतलब 1 वोल्टेज रखना हुआ, 1 एम्पियर रखना हुआ, तब जा करके देगा 1 ओम। क्लियर है? तो 1 ओम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिखूं क्या? व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied in any conductor and a unit charge of 1 ampere, unit charge of 1 ampere passes through it, then the resistance offered by it, offered by it is 1 ohm, जब 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर में अप्लाई किया जाएगा तो यूनिट चार्ज उसमें फ्लो होगा, और जब यूनिट चार्ज फ्लो होगा तो 1 वोल्ट बाई, उसके नीचे लिखेंगे ये चीज, इसके नीचे ये चीज लिखेंगे। तो
1 volt by 1 ampere, that will give you 1 ohm. क्लियर? तो इस चीज को आप नोट करिए, नोट कर लिए. ओके, नोट कर लिए. ओके, अब कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक में चलेंगे. ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? क्लियर? व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? सो और कंपोनेंट यूज्ड, a component used to regulate a component used to regulate current without changing the voltage. Regulate current without changing the voltage. Without changing the voltage source in the circuit. Voltage source in the circuit is called variable resistance. Variable resistance. That means variable resistance is the डिवाइस विच रेगुलेट्स करंट, जो करंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज सोर्स में विदाउट चेंजिंग किए, बिना चेंजिंग के जो सर्किट है उसमें करंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. और इसका सिंबल जो होता है, सिंबल होता है इसका इस तरह से और ऐसा. वेरिएबल सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का. ओके, सो दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट इज रिहोस्टेट. Rheostat. So what is rheostat? So a device in an electric circuit, called rheostat, which is often used for changing the resistance. सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम है रिहोस्टेट. और इसका सिंबल कुछ ऐसा है जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं. ये रिहोस्टेट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्लियर है? सो दिस इज रिहोस्टेट. A device in an electric circuit called rheostat, which is often used for changing the resistance. जो रेजिस्टेंस को
सर्किट में चेंज करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड रिहोस्टेट। क्लियर है? ओके, नोट किए। आखिरी एक पॉइंट है, यहीं पे मैं लिखूंगा, आखिरी पॉइंट, इस पार्ट का आखिरी पॉइंट दैट इज रजिस्टर। आखिरी पॉइंट है रजिस्टर। व्हाट इज रजिस्टर? सो अ कंडक्टर having some appreciable resistance is called resistor. Appreciable resistance that means fixed resistance, जिसका फिक्स्ड रेजिस्टेंस है और वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस उस सर्किट को कंट्रोल किए हुए है। अप्रिसिएबल बोलते हैं, अप्रिसिएट करते हैं किसी को, मतलब उसका कुछ अलग काम होता है, कुछ यूनिक काम होता है। तो इसका कुछ यूनिक काम है सर्किट में, कुछ अलग काम करता है, स्पेशल काम करता है। क्लियर? दैट्स वाई इसको हम लोग अप्रिसिएट करते हैं। सो अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ एंड रिलेटेड टू द टर्म्स। वन मोर थिंग मैं बता दूं कि जो रेलवे इंजन, रेल जो चलती है वो 25,000 वोल्ट पे वो चलती है। ठीक है? रेल जो चलती है कितना में चलती है? 25,000 वोल्टेज में रेल चलती है। ठीक है? मतलब उसको रेल इंजन को रन करने के लिए, चलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 25,000। और ये 25,000 से भी एक ऊपर होता है दैट इज 33,000 वोल्ट, जो हम लोग देखते हैं शहर से बाहर एक बहुत बड़ा सा इस ढंग से इस शेप में एक रहता है, बहुत बड़ा सा डायग्राम देखे होंगे। उस डायग्राम 6 इस तरह से 2 2 2 1 6 वायर्स रहते हैं। आप देखे होंगे कहीं पे, ये क्या बोलते हैं, टावर टाइप से रहता है, उसमें वायर रहता है, बहुत दूर दूर तक जाता है, उसमें 33,000 वोल्टेज रन करता है। ठीक है? तो ये सब जितने चीजें हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही है, जानना चाहिए। 25,000 से हमारा चलता है रेल इंजन। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ एंड द potential difference, electric potential. So try to note down these all points on your copy and be continue with this. पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा तब जब आप पढ़ाई करेंगे। So okay, thank you, all the very best.